Hello friends, a very warm welcome to Ansarkari, and in this session we are taking up with some important concepts like the way we have been dealing regularly. So without getting any more wasted, let's move on and try to understand the developments. The first is about the government hikes excise duty on petrol and diesel by ₹2 per liter. और हमारे ऑयल मिनिस्टर सर का कहना है कि जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज हैं दे विल हैव हेड रूम फॉर प्राइस रिवीजन नॉट अपवर्ड्स बट डाउनवर्ड्स इफ द प्राइसेस ऑफ क्रूड रिमेन लोअर। तो यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बिना ज्यादा नुकसान में किए कोशिश ये है कि कंज्यूमर्स को उनके प्रयोग के लिए और उनकी लाइफ के लिए उनको चीजें मिले। So here we can see the LPG cylinder price and even petrol price it is being discussed कि ये हाइक हुआ। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है? पीछे की स्टोरी यही है कि इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन 60% ऑफ इट्स एलपीजी कंजम्पशन और प्राइसेस ऑफ एलपीजी आर लिंक्ड विद द इंटरनेशनल प्राइसेस एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट आल्सो इट इज बिलीव्ड दैट गवर्नमेंट इज नॉट एक्चुअली सारा का सारा जो कॉस्ट है इट इज नॉट ट्रांसफरिंग टू द कंज्यूमर्स। उज्ज्वला स्कीम भी है एंड देन वी हैव टू सी प्राइस इन्फ्लेशन भी देखना है। देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, तो इट इज लिंक्ड विद द ग्लोबल क्रूड प्राइसेस आल्सो, दैट्स व्हाट वी हैव टू से। India and UAE, very important facts are given here. पहली बात, in UAE was formed in 1971, India's independence was in 1947, and the both nations they have a very deep trading and cultural connections. And under the leadership of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, and His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, who is on a visit to India also, Vice President and Prime Minister of UAE and ruler of Dubai, our ties have increased. Dubai is the center for large number of Indian companies. Dubai is the center for India's FDI. Dubai is the center for diversification. Dubai is the center for innovation, and it is having much higher presence and innovation than even Singapore in certain aspects. As far as greenfield projects are concerned, it is having a great what I should say charm. So Indian companies are expanding into it, and for India also, it is very important. Dubai's D33 agenda is that by 2033, economy must be doubled. India-UAE defense partnership is also very strong. India is doing regular exercises in desert, and India is also, closely coordinating with Emirates Defense Companies Council. And in India, the role of Society of Indian Defense Manufacturers, it is very important to bring experts, specialists and business leaders और हम आगे बढ़ सकें। तो आप क्या चार कीवर्ड देखोगे? वाई दुबई है तो वाई सिंगापुर, वाई इंडिया। तो ये चार पांच जो कीवर्ड हैं, अनपैरेलल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इनोवेशन इकोसिस्टम एंड वाइब्रेंट इकोनॉमी, ये सब जगह फिट होता है। With no El Nino conditions, normal rains likely this year, but then too early to predict, the onset of season. Second consecutive year of normal monsoons for the country, rains likely to be influenced by other sub-seasonal weather factors. लेकिन वही बात है कि एल नीनो की कंडीशन होने के बावजूद भी heat waves and heat conditions will remain, and supporting factors are also very important. तो अब देखना ये है कि monsoon would be influenced by other kind of sub factors or not. दिस इज हाउ इट इज, क्योंकि बिलो नॉर्मल एंड पैची अगर मानसून रहता है तो उससे एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, हर चीज का डायरेक्ट लिंक है। नीति आयोग सेज कि ये बहुत अर्जेंट है दैट वी मस्ट री इमेजिन आवर R&D स्ट्रेटेजी। तो री इमेजिन बोलने से आप बात नहीं कर पाते, जीडीपी में उसका परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना पड़ेगा, कॉलेज की जो पास आउट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनकी जो माइंडसेट है, उनका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी वो बढ़ानी पड़ेगी। चाइना की जो सक्सेस है, जरूरी नहीं कि हम उसको कॉपी करें, बट देन वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट अनटिल अनलेस रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है, अगर वो हम नहीं बढ़ाएंगे, अगर वो उसको हम प्रमोट नहीं करेंगे, तो हमारा ओवरऑल सक्सेस की तरफ बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। ओवरहॉल ऑफ फार्मा लॉजिस्टिक्स वैल्यू चेन ऑन कॉस्ट। तो वैल्यू चेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इज प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इंडिया इज द किंग, इंडिया इज द हब of generic medicine even for Europe, even for US and even for Africa. So
तो अब जो है फार्मा लॉजिस्टिक्स में इंडिया नीड्स टू स्टडी, इंडिया को स्टडी करनी है कि फ्लो ऑफ गुड्स इंटरनेशनल, रीजनल और नेशनल लेवल पे कैसे जाएंगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो डेटा है उससे हम निकालेंगे कि हम कैसे हम फास्टेस्ट और कैसे हम एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं, बाई सी, बाई बाई एयर। और उसके बाद जो है पोटेंशियल भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा, कौन सी कंट्रीज में हमारा पोटेंशियल है, डाइवर्सिफाई हम कैसे कर सकते हैं। और जो कॉस्ट है, इनवर्ड फ्रेट कॉस्ट है या आउटवर्ड फ्रेट कॉस्ट है, इन सबको भी देखना होगा। आप यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, आप इसको नोट कर सकते हैं। इंडिया एज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी बात है ये चाइना के मुकाबले हमें मौका मिलेगा, क्योंकि हम पहली बात तो इंडिया का 26% यूएस ड्यूटी है। और एशियन जो बाकी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल वियतनाम है 46% है, क्योंकि वियतनाम इज मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना ऑल्सो। इंडिया ट्रेड सरप्लस विद यूएस इज मॉडेस्ट, तो इंडिया यूएस ट्रेड डेफिसिट भी 46 बिलियन, जबकि चाइना के साथ तो 295 बिलियन है। इंडिया कैन एड यूएस in supply chain diversification, and we are already moving towards it, so we are going to have a lot of benefits that. So that is why Apple and Samsung, they are eyeing India as a China alternative. So India से अभी भी एप्पल्स इतने मात्रा में एक्सपोर्ट हुए हैं, भी वन ऑफ द बिगेस्ट रॉबस्ट फैक्टर रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का, वो और भी बढ़ जाएगा। एंड इंडिया कैन ऑफर मोर यू नो यूएस मोर टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी एक्सेस, और उससे क्या है, हमारा जो ग्रीवेंसेस हैं वो और भी जल्दी सॉल्व हो जाए। So that is why it is not just trade deficit, but it is also about the ideology. It is also about the pre-existing strategic relationship. उससे हम कह सकते हैं कि हम हैंडल कर लेंगे। इंडिया 26% रेसिप्रोकल टैरिफ इज रिलेटिवली माइल्ड, और जब उसको आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से मैच कर देते हैं, तो इंडिया एक अट्रैक्टिव और बहुत ही वायबल और बहुत ही स्ट्रैटेजिक ऑप्शन उभर के आ जाता है। इसीलिए बीटीए में उसकी चर्चा की जाएगी। पिछले 3 से 4 दिन में ग्लोबल मार्केट्स डे सेल ऑफ वाइप्स आउट अराउंड 10 ट्रिलियन। तो आपको यहाँ पर एक तो जितनी मार्केट्स हैं इनके नाम पता होने चाहिए। दूसरा, हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द न्यू डेवलपमेंट विच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द साइड ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। और यूएस जिस तरीके से टैरिफ वॉर और ट्रेड एम्बार्गो, वर्चुअल ट्रेड एम्बार्गो भी चाइना को प्रमोट कर रहे हैं, उससे हम कह सकते हैं कि अभी तो मूड सेटल होने वाला नहीं है। बिकॉज फॉर नोबडी नोज कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये कोई एक बेट है, ये कोई एक स्ट्रैटेजी है, या सिर्फ वो कुछ और डील चाहने के पर्पज से ऐसा कर रहे हैं। ब्रेंट, यूपीएससी में ब्रेंट आ चुका है। व्हाट इज ब्रेंट, हाउ इट इज, व्हाट इट इंडिकेट्स। तो ब्रेंट फ्यूचर्स ये तो ऑयल के लिए है, तो दिस इज ऑल्सो शोइंग एन एग्जाम्पल। अब ईवी, चाइना ईवी में वर्ल्ड लीडर है। हमें क्या चाहिए, पॉलिसी पुश चाहिए, इंडस्ट्री की और अवेकनिंग चाहिए, टेक एडवांसेस चाहिए। और अगर ये सारी चीजें होती भी हैं तो टेस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन भी चाहिए। तो हाइप से काम नहीं चलेगा कि भाई हम चाहते हैं, क्योंकि रेंज कितनी है व्हीकल की, चार्जिंग कैसे होगी, और अगर ईवी की गाड़ी रुक जाती है तो वो आप कैसे हैंडल करेंगे। तो इसीलिए यू नो पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिल्ली का एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। दिल्ली गिव्स नॉन स्मोकर्स द इक्विवेलेंट ऑफ स्मोकिंग एज मेनी एज 20 सिगरेट्स अ डे। अब आप देखिए दिल्ली का AQI वर्ल्ड के 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में आता है। और इकोनॉमी में तो और भी ज्यादा वर्स है। 75% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल इज इंपॉर्टेंट विद द प्रीशियस फॉरेन रिजर्व्स। तो इसलिए पॉलिसी मेकर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी या ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम मुड़े। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी बैटरी कैसे बनेगी, उसका अडॉप्शन कितना लॉन्ग टर्म होगा। और जो ऑटो ग्लोबल कंपनीज है वो ईवी पॉलिसीज को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देर इज अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि इस मोमेंटम को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। इंडिया एक ऐसे डिवाइड पर है जहां पर अर्ली अडॉप्टर्स भी हैं, और उसके बाद एक ऐसा भी है जहां पर एक फर्स्ट टाइम बायर्स भी हैं। और सभी लोगों का रिलायंस जो है वो अवेयरनेस और ट्रेडिशनल माइंडसेट के ऊपर पड़ता है। सो इंडिया जो है वो यू नो इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू कंटिन्यू बिल्डिंग रोड्स आफ्टर एयरपोर्ट्स आर बिल्ट। तो चार्जिंग स्टेशन आफ्टर थॉट नहीं हो सकते। वो टेलीकॉम एक्सपेंशन की तरह है। पहले आप सिग्नल लॉस की वजह से, जब टावर की बात ही, टावर ही नहीं था तो आपके पास सिग्नल क्या आएंगे। तो मोबाइल तो आ गया पर सिग्नल तो नहीं आया। इसलिए पहले हमें चार्जिंग स्टेशंस की बात करनी पड़ेगी। पहले हमें पहले हमें क्लीन चार्जिंग स्टेशंस की बात करनी पड़ेगी। फॉसिल फ्यूल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो वो फिर बात वही हो जाती है। तो पॉइंट है कि ये एक बहुत ही स्मार्ट गेम है, और कॉस्ट भी आपको लॉन्ग टर्म में कम करना पड़ेगा। प्राइस सेंसिटिव कस्टमर चाहता है कि उसको सस्ता मिले, उसको एक विद इन रीच मिले।
ईवी की अगर हम कहें ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन जो हमारा पेट्रोल और डीजल व्हीकल है, इसके कंबाइन में अगर हमारा प्राइस पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट थिंग। रीसेल वैल्यू इज ऑल्सो अनदर पॉइंट, क्योंकि ईवी बैटरीज यू नो अब तो उसको एक स्क्रैप की तरह यूज करते हैं, तो डीवैल्यूएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और लॉन्ग टर्म में हमें सक्सेस चाहिए इस डायरेक्शन में। तो यू ऑल्सो थिंक और टेल मी कि आप अगर को मौका दिया जाए सेक्रेटरी रिन्यूएबल एनर्जी या सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, तो आप इसको कैसे करेंगे? हमने पहले भी चर्चा की। बिम्स्टेक के फैक्ट्स आप पहले देखेंगे कि बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आप देखिए कि कैसे थाईलैंड में जो मीटिंग हुई उससे हमने क्या लिया। बैंकॉक विजन 2030 आखिर कहना क्या चाहता है? क्योंकि वो पोर्ट एफिशिएंसी, हार्मोनाइज पॉलिसी, स्ट्रीमलाइन कस्टमर कस्टम्स प्रोसीजर्स, उसके बाद स्मूदर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। और जो ये सारी कंट्रीज ने कैसे मिलकर नया रास्ता निकालेंगे। जो रीजनल ग्रुप्स के बीच में टेंशन है, जैसे अब इंडिया के साथ जैसे बांग्लादेश को अभी जो रिलेशनशिप में जो रिस्ट्रेनिंग है वो कैसे दूर होगी, वो भी एक फैक्टर है। तो इसीलिए हमें देखना है कि इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, इंडिया ओपन माइंडेड भी है, इंडिया वांट्स टू गेट अलोंग विद ऑल द कंट्रीज ओवर हेयर। एंड जो ट्रेड है बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में, ये फैक्ट है, ये आप नोट कर लीजिए कि आसियान के मुकाबले, सार्क के मुकाबले हम कैसा कर रहे हैं और आगे कैसे हो सकता है। तो हमने पहले भी उसकी चर्चा की है, जैसे 60 बिलियन ट्रेड है अमंग द 7 मेंबर्स, अगेंस्ट 5 बिलियन इन 2000। और बीमस्टेक अलायंस विद इंडिया एक्टिव पॉलिसी ऑफ कल्टिवेटिंग टाइप्स साउथ, हमने पहले भी 2 दिन पहले भी इसका डिटेल में चर्चा की। अब हम बात करते हैं मुद्रा योजना की। मुद्रा योजना ने कितने लाखों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हम कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फीमेल एम्पावरमेंट, फीमेल कॉन्फिडेंस और उनके वर्क कल्चर को इम्पैक्ट किया है। एमएसएमई को बहुत ज्यादा पुश दिया है। 35% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, 40% ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड ओवर 30% ऑफ जीडीपी। एमएससी एमएसएमई एम्प्लॉय मोर देन 260 मिलियन पीपल। तो अब आप देखिए कि कितना बड़ा रोल है आपके मुद्रा लोन्स का, जो कि शिशु लोन से 50,000 विच इज आइडल फॉर स्टार्टअप्स एंड न्यू वेंचर्स एंड इंकरेज फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स टू किक स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस। फिर किशोर लोन है 50,000 से 5 लाख। फिर तरुण है 5 लाख से 10 लाख। एंड देन तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख। एंड एडिशनली प्रधानमंत्री जनधन योजना तो है ही, वो 10,000 रुपए का भी आपको क्वालिफिकेशन देते हैं कि आप ले सकते हैं। उसके इम्पैक्ट मैंने जैसा कहा बहुत ज्यादा है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा है। लोन फॉर्मलाइजेशन होता है, उसके साथ साथ में आदमी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की तरफ काम करने के लिए बढ़ता है, क्योंकि क्रेडिट एक बहुत बड़ा इशू है। विदाउट क्रेडिट यू कैन नॉट थिंक ऑफ इनोवेशन, यू कैन नॉट थिंक ऑफ सस्टेनिंग एनी बिजनेस, बिकॉज उसमें डर है, उसके अंदर हारने का एक वहम बनता है। तो लोन एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ और स्ट्रीमलाइन तरीके से आगे बढ़ी। और फीमेल्स के लिए तो मैं कहूँगा अपने आप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली नरेंद्र मोदी सर ने जो ये आइडिया किया, दैट हैज बीन अ गेम चेंजर। इट विल ब्रिंग रिजल्ट्स मच मोर। गवर्नमेंट वर्क्स टू ब्रिंग ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स अंडर पीएमएलए फोर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवाईसी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आजा मेरे सर्कल में बैठ जा, आजा मेरे 3 करोड़ रोज जीतो, तो ये तो अपने आप में फ्रॉड की तरह है। इसमें लाइवलीहुड्स भी हैं। नीचे सिर्फ आप बोल देते हैं कि इस खेल में आदत लगने का खतरा है, सावधानी से खेलें, आर्थिक जोखिम हो सकता है, सावधानी से इसको करने की जरूरत क्या है फिर? तो इसीलिए सेंटर इज इन एडवांस स्टेजेस टू फाइनलाइज मूव दैट कुड ब्रिंग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनीज सच एज ड्रीम 11, गेम 24/7 एंड विंजो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज एंड सब्जेक्ट देम टू स्ट्रिक्टर ऑब्लिगेशंस ऑफ नो योर कस्टमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आम आदमी की कमाई को खा जाएगा, ये लोगों को एक झूठा विश्वास देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और FIUIND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट फॉलोज अ नंबर ऑफ कंप्लाइंस ऑब्लिगेशंस। सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट एविडेंस होने चाहिए, आइडेंटिटी का, क्लाइंट्स का, बेनिफिशियल ओनर्स का। एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज को भी हम फॉलो करेंगे। तो इसीलिए ये सेकंड स्टेप होगा। पहले 28% जीएसटी जो लगा है वो पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप होगा। और इस सेक्टर को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और हम कह सकते हैं कि दीज कंपनीज टिपिकली मेक मनी बाई टेकिंग ए कट फ्रॉम ए यूजर्स विनिंग्स। मोर देन 155 मिलियन इंडियंस आर इंगेज्ड विद रियल मनी गेमिंग सब सेगमेंट, फैंटेसी स्पोर्ट्स है, रमी है, पोकर है, ये सभी एक ही दिशा के खिलाड़ी है। एंड जो कंपनी है वो तो हमेशा ही कहेंगी कि भाई ये गेमिंग नहीं है एंड इट इज अ काइंड ऑफ स्किल बेस्ड थिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 25 से 30 बिलियन वर्थ ऑफ मनी सर्कुलेटिंग ऑन द ऑफशोर बैटिंग प्लेटफॉर्म्स। आईपीएल जब होता है तो ये आईपीएल जैसे गेम्स होते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये बहुत खतरनाक है, परिवारों को बर्बाद कर देगा।
एंड ब्लॉकिंग देयर डोमेन इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव, क्योंकि वो नया लैंडिंग पेज बना लेते हैं कुछ ही मिनट्स बाद। और आईटी मिनिस्ट्री के जो एफर्ट हैं ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के, वो अमेंडमेंट्स के थ्रू होने के बाद भी वो हो नहीं पाए हैं। इसीलिए ऑनलाइन गेमिंग जो है वो अलाउ तो कर दिया गया है, और लेजिटिमेसी उसकी जो है ऑनलाइन गेम की वो भी है, लेकिन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज स्टार्ट करने की बात है विद ओवरसाइट ऑफ गवर्नमेंट अमंग अदर प्रोविजंस। लेकिन सेल्फ रेगुलेशन जो है इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मिनिस्ट्री इन ऑल द केसेस, क्योंकि वो जो है गेमिंग इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस हो सकता है। मद्रास हाई कोर्ट इज ऑल्सो हियरिंग ए पिटिशन विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग लॉज इन इंडिया। स्पेस कल्चर भी हमें बनाना होगा, हमें इंटीग्रेटेड कमांड भी बनानी होगी, हमें मिलिट्री डॉक्ट्रिन भी चाहिए जो स्पेस को हमें आगे बढ़ा सके। तो CSCDS जनरल अनिल चौहान प्रेजेंट से मोमेंटो टू फॉर्म छत्तीसगढ़ गवर्नर शेखर दत्त ऑन मंडे। तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पर कि कैसे इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने जो मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में जो ये डिस्कशन किया, इससे हमें यही पता लगता है कि मिलिट्री स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। और मिलिट्री डॉक्ट्रिन, वॉर फाइटिंग कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सारे के सारे फ्यूचर वॉर के लिए है। पोटेंशियल थ्रेट हमें देखने होंगे चाइना से, पाकिस्तान से। नेशनल सिक्योरिटी को हम कैसे और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करें, कैसे हम उसको अपडेट रखें, और हमारे एडवर्सरीज अगर कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो हम उसको कैसे आउटस्मार्ट करें। ये सारी बात स्पेस कल्चर में आ जाती है, चाहे फिर मून की बात है, चाहे फिर मार्स की बात है, चाहे फिर लो अर्थ ऑर्बिट की बात है, चाहे फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की बात है, सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1950 ओवर पाक ट्रिप एंड पासपोर्ट लॉस्ट। तो 6 साल लगे अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए। 1964 का अब्दुल सत्तार हाजी रहमान पटेल वर्सेस हाजी इब्राहिम पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है। तो रूलिंग जो है ये बताना चाहती है कि अगर आप किसी का सिटीजनशिप स्टेटस देखना चाहते हैं तो फेयर इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसका बेंचमार्क सेंटर के द्वारा बनाया जाना चाहिए, इस्टेब्लिश होना चाहिए कि ये पर्सन इंडियन है कि नहीं है, इससे पहले आप उसको फॉरेन का लेबल दे दें। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लैंडमार्क रहा, और इस केस की वजह से आप कह सकते हैं उसने एक प्रेसिडेंट सेट किया। और आप कह सकते हैं कि ये आज के समय में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। हमने पाकिस्तान बॉर्डर, पहली बात तो आप बॉर्डर देखिए कि पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब के साथ कितना है, पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरात के साथ कितना है, उसके हिसाब से आपको आइडिया आएगा कि BSF ये जो हमारी है, BSF स्टैंडिंग एंड गार्डिंग। तो ई सर्वेलेंस सिस्टम हमने बनाया। ई सर्वेलेंस सिस्टम यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम जिसके अंदर दो मॉडल्स होंगे बॉर्डर के साथ साथ। अगर कुछ भी होता है एनिमी की साइड तो आपको फटाफट से पता लग जाएगी, विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। एंड एट द सेम टाइम आप आइडेंटिफाई और डिसमेंटल कर पाएंगे ग्राउंड टनल्स को। टेक्निकल मीन से आप ऐसा पता लगा देंगे जैसे चाइना के पास एडवांस्ड है और इसराइल तो इसका वर्ल्ड लीडर है। तो इनोवेशन है, साथ साथ में हम कह सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा, साथ साथ में कह सकते हैं कि BSF फोर्सेस को थोड़ा सा एक तरीके से वे अहेड मिलेगा, लेकिन वो किसी भी कॉस्ट के ऊपर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटने वाले। एंड सेम इज बिलीव्ड ऑफ यू ऑल्सो कि आप भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। बिजनेस वर्ल्ड्स आर बिकमिंग मोर एम्पैथेटिक। ये बहुत अच्छा मुकेश अंबानी सर ने जो ये दिया है कि वो बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर में है, इंटेलिजेंस में है, इंटेलिजेंस आई मीन टू से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, और साथ साथ में आप IT में भी कह सकते हैं। तो ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है अपनी डॉटर के उससे, ईशा ऑलवेज टेल्स मी दैट इट नॉट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट इज द सर्वाइवल ऑफ द काइंडेस्ट। तो ये बहुत अच्छा लाइन भी है हमारे लिए। अब उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि कैसे वो अपने फादर को ग्रेड करती हैं, कैसे उनकी सारी मीटिंग्स के ऊपर कैसे वो अपने आइडियाज देती हैं, और पूरे पूरे ग्रुप के अंदर वो देखती है कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। फंडामेंटली रिलायंस के अंदर वुमेन लीडर्स हैं। मोस्ट ऑफ आर बिग इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग आवर हॉस्पिटल्स इन मुंबई व्हिच आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ, आर built by नीता एंड रन by वुमेन लीडर। आवर फाउंडेशन इज रन by वुमेन लीडर। NMACC नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर हैज एन ऑल वुमेन टीम। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का इन्होंने एग्जांपल दे रहे हैं और ये बता रहे हैं, जैसे कि मलिका श्रीनिवासन का एग्जांपल इन्होंने यहाँ दिया। देयर वाणी कोला, इफ यू टॉक अबाउट स्टार्टअप्स फॉर शी इज वेयर वी गॉट द हाईएस्ट रिटर्न्स, वी आल्सो मेट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स विद हर। तो you win in the mind as always. It doesn't matter who you are. The important thing is that you win in mind. I believe in what Zia Modi said. You just have to go for it. You will never succeed in the first attempt. Keep at it and you will ultimately win. तो ये मैं बात सिविल सर्विस के लिए भी आपको हमेशा बोलता आया हूँ। बस ये है कि आपके लिए और ज्यादा लोनली है, आपके लिए और ज्यादा सस्टेनेंस करना है, लेकिन सक्सेस भी ऐसे ही मिलेगी। योगेंद्र यादव जी ने यहाँ पर एक आर्टिकल दिया है, एन इनकम्प्लीट सोशल जस्टिस रिजर्वेशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लॉन्ग ओवरड्यू। वो कहते हैं लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स आर अवेलेबल, लेकिन पॉलिटिकल विल की वजह से हम ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि जो प्रोफाइल है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं
वो रिजर्वेशन फॉलो नहीं करते हैं, और उसके बाद रिच, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बायसनेस है, एक तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट जो है वो सोशल अगर स्ट्रक्चर की आप बात करो तो अपर स्ट्रक्चर से आते हैं। एससीज बहुत कम आते हैं, एसटीज भी बहुत कम आते हैं, मुस्लिम्स बहुत कम आते हैं। और पिक्चर और भी स्क्यूड हो जाती अगर जो है आप कहें कि जो मोस्ट सॉट आफ्टर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं अगर वो थोड़ा सा और ओपन नहीं होती। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये होना चाहिए। और आपका क्या व्यू पॉइंट है ये आपको देखना है, आपको मुझे बताना है कि ऐसे करके हम इसको सिस्टमेटिक अप्रोच से हम यूनिवर्सिटीज को भी एक बहुत ही इंक्लूसिव, बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही प्योर स्पेस बना सकते हैं। इंडोनेशिया प्लान्स फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफॉरेस्टेशन फॉर फार्मिंग। तो गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है, और बेल्जियम के जितने साइज का वो फॉरेस्ट को खत्म करेंगे। इट इज फॉर फूड सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये अपने आप में एक एग्जांपल है। व्हाट डू यू बिलीव इन इट, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिबेट। और आप इसकी लोकेशन देखेंगे कि आइलैंड्स ऑफ पापुआ एंड कालीमंतान। तो कंबाइंड साइज ऑफ द न्यूमरस प्रोजेक्ट साइट्स मेक द मेगा प्रोजेक्ट द लार्जेस्ट करंट डिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। और इसका नाम भी दिया गया द लार्जेस्ट साइट कॉल्ड मेरुके इंटीग्रेटेड फूड एंड एनर्जी स्टेट विल कवर मोर देन 3 मिलियन हेक्टेयर्स इन द फॉरेस्ट। तो आप सोचिए इंडिया में तो ऐसा होता ही नहीं है, हम इस चीज को बिलीव ही नहीं करते, तो क्या ये अपने आप में सक्सेसफुल होगा? ये मेरा क्वेश्चन आपके लिए है। द 1997 एथिक्स कोड विल मेंशन द आइडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस डिक्लेयरिंग एसेट। तो ये प्रीलिम्स के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के अंदर एथिक्स के पेपर के अंदर आपको ये कोड ही मेंशन कर देना चाहिए कि कैसे 1997 का जो कोड है वो कहता है कि अगर आप अपने प्रॉपर्टी को, अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं करते हैं अपने स्पाउस और अपने डिपेंडेंट्स पे, तो ये पब्लिक का फेथ इरोड करता है। कोई इलेक्शन तो कंटेस्ट नहीं करना है, लेकिन आपको फिर भी जो जुडिशियल जो ऑनरेबल जजेस हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। तो और ऊपर से जो है डिग्निटी है, कंसिस्टेंट ब्लू अलूफनेस भी है। नो नो हियर एंड डिसाइड केसेस वेयर फैमिली मेंबर और फ्रेंड इज इन्वॉल्व, नो पब्लिकली एक्सप्रेस लॉज ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, let his judgments speak for themselves and must not give interviews to media, not accept gifts or hospitality from anyone beside family and friends, and avoid acts unbecoming of high office। तो इसीलिए ये जो अकाउंटेबिलिटी है उसके उसको इंश्योर करना बहुत जरूरी है। आप कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन कॉन्फिडेंशियल भी शुरू में हम कह सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंशियल हैं, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, ऑनरेबल सीजेआई, उनको ही जाने चाहिए। तो मतलब एक तरीके से वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ की यहाँ पर बात की, तो ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में जब एलिगेशंस हुए थे फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी के अगेंस्ट द बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, तो तब उन्होंने इस सिस्टम को और पुट करने की बात की थी, लेकिन हम इसको अच्छे से अप्लाई और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कंप्लीटली इसको फॉलो नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों, ताकि हम इस पर चर्चा करें। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नोट डाउन इट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। राजा चलैया कमेटी का यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, आपको वो भी नोट कर लेना है। एंड यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कि इंडिया के जो टैरिफ्स हैं वो कैसे 1990s में इवॉल्व हुए। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, और जीएस के अंदर भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब जो भी हो रहा है मार्केट में, जैसा हमने बोला कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, जो भी यूरोप में बात होती है, तो ये एक तरीके से एंटी फ्री ट्रेडर वाला सेंटीमेंट आ जाता है। और टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स जो है वो अब फेल हो रही है उस तरीके से, क्योंकि सारी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और सभी एक ग्लोबल चेन का पार्ट हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे फिर वो यूक्रेन का वॉर हो, इन सभी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है हमें ये हैंडल करना कि कैसे कैसे जो है हम उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। तो ट्रेड थ्योरी यही कहती है, ट्रेड थ्योरी हम इंडिया के लिए तो कि कैसे अपनी वो ग्रोथ करेगा, कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा, कैसे सस्टेनेबल तरीके से आप डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और जो जो चाइना जो डंपिंग करता है वो हो गया, ये सारे फैक्टर्स लगा कर कैसे हम चीजों को हैंडल कर पाएंगे, ये हमें इस पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के एंगल से देखना है। क्वांटम साइबर अटैक थ्रेट के अगेंस्ट हम अपना खुद अपना जो है एक शील्ड रेडी कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको क्वांटम कंप्यूटिंग पता होनी चाहिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के एप्लीकेशन पता होने चाहिए। ये जो सामने क्वांटम लीप आप देख सकते हैं, तो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज बीइंग डेवलप्ड, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात की गई, और सर्ट इन ने जो है वो साइबर हाइजीन के प्रमोट करने की बात कर रही है, और क्वांटम कंप्यूटर्स कैन ब्रेक इंक्रिप्शन मच फास्टर देन द क्लासिक वंस। तो क्वांटम कंप्यूटर्स के आखिर रोल क्या है, गूगल कीजिए, विकीपीडिया से वो जरूर नोट करिए, वो मेंस के अंदर काम आएंगे। उसी के अंदर हमने जो प्रोग्राम चलाया, जैसे नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स कैसे काम कर रहा है, उसके बाद आप देखेंगे कि सर्ट इनका रोल क्या है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे
क्वांटम लीप को इंडिया के, और इंडिया कैसे इसमें वर्ल्ड क्लास बन सकता है। क्वांटम सेफ नेटवर्क्स हम जो है वो कैसे फ्यूचर के लिए नेसेसिटी हैं, उसको भी हम ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। So with these ideas, I wish all of you a good success. प्लीज आप अपने नोट्स साथ में बनाइए, की वर्ड्स बनाइए, पैरा लिखिए। सिर्फ सुनने से नहीं होगा। वी ऑलवेज बिलीव इन मल्टीटास्किंग, वी ऑलवेज बिलीव इन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। आप खुद ही इतने ऊपर उठ जाओगे, या तो आप एग्जाम निकाल दोगे, और या फिर आप खुद को जो है स्वीकार कर लोगे कि हाँ मैंने पूरी मेहनत नहीं की, मुझे और करने की आवश्यकता है, जो हम हर हाल में करके रहेंगे। So thank you very much. Keep watching, keep learning, and also do subscribe our courses and join us in order to get success.